औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear students and viewers, I am your teacher Muhammad Shafi. I once again welcome to all of you in this English class of 7th. I am going to teach you an interesting story of your English book, which figures at page number 83. The name of this story is The Little Girl, who has been written by Catherine Mansfield. Dear students, I hope you will listen and try to understand it. Before going to move towards the summary, I want to give you a little bit introduction about the writer Catherine Mansfield. Dear students and viewers, Catherine Mansfield was born in Wellington in New Zealand in 1888 and she died in 1923. She was a middle-aged child with two young siblings. Dear students and viewers, as a teenager, she had a few stories published in her school magazine. While finishing education, she traveled across Europe, and in 1906 she went home where she was born, that is New Zealand, for several years before returning to London. She became mother. Dear students, she wrote short stories, poetry, letters, journals, and is regarded as the central figure in modernism. My dear students, I will give you a brief summary of The Little Girl. It is a little girl whose name is Kizai. Whose name is Kizai, who, on account of a little understanding about her father, usually remained scared of him. She kept a distance from him whenever he would be at home. However, she relieved on seeing her father going to the office. Her feeling for her father changed in the end from fear to understanding. Dear students, you will easily understand it. I will give you now introduction of this story. Have a close look on the screen. The Little Girl is a short story. It is written by, as I earlier told you, that is Catherine Mansfield. It is written by Catherine Mansfield. It is a very short story. It is about a little girl whose name is Kizai. Whose name is Kizai, who is initially afraid of her father, जिसको शुरू में अपने बाप से सख्त खौफ होता है, एंड अवॉइड्स हिम, वो उसको अवॉइड करती है, अपने बाप के सामने जाने से अवॉइड करती है, अपने आप को बचाती है. शी फील्स रिलीव्ड एंड रिलैक्सड. वो अपने आप को क्या फील करती है? रिलीव्ड, और रिलैक्स करती है अपने आप को महसूस. ऑन सीइंग हर फादर टू गो टू द ऑफिस, जब उसका वालिद कहाँ जाता है? ऑफिस में. तो उस टाइम उसको बहुत ही अपने आप को सेफ महसूस करती है. सो उसको बहुत ही थ्रेट
अपने फादर का होता है. नाउ द समरी दैट इज कीज़ई was a little girl who lived with her parents. कीज़ई क्या थी? एक लिटिल, बहुत मासूम लड़की थी जो रहती थी इसके साथ, अपने वालिद के साथ, पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड मदर के साथ. शी डिडेंट लाइक हर फादर, वो अपने बाप को लाइक नहीं करती थी, नापसंद करती थी. बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ओवर बियरिंग एटीट्यूड. किस वजह से? ओवर बियरिंग एटीट्यूड. ओवर बियरिंग किसको कहते हैं? अनप्लीजेंट एटीट्यूड, यानी इल टेम्पर्ड. जो एटीट्यूड उसके वालिद का था, तरीका था, तो इसी वजह से वो अपने वालिद को लाइक नहीं करती थी. सो लॉन्ग फादर रिमेंडेड एट हिज ऑफिस शी वॉज लीव्ड. जब तक उसके वालिद यानी कीज़े के बाप जब तक वो ड्यूटी पे रहते थे उस टाइम तक वो रिलैक्स होती थी, यानी वो अपने आप को सेफ महसूस करती थी. प्यारे बच्चों, बट द मोमेंट ही कैम बैक, जब कीज़े के फादर वापस आते थे, वुड स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. शी नेवर स्टटर्ड with people but failed to speak properly in front of him. He appeared to her as harsh, rude, and critical. He was like a gant for Kizai. But the moment he came back, जब भी उसके वालिद कहाँ रिटर्न बैक फ्रॉम ड्यूटी आते थे, कीज़ई स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. जो कीज़ई थी वो अपने आप को क्या फील करती थी? Uncomfortable. She never stuttered. She never stuttered. Stuttered means problem. जब बोलने में किसी को हिचकिचाहट, जब कोई डरने की वजह से रुक रुक के बोलता है, जिसको हम उर्दू में हकलाना बोलते हैं या स्पीच इम्पेयरमेंट बोलते हैं, तो जब क्या होता था? जब भी she never stirred with people but failed to speak properly in front of him, वो फेल हो जाती थी, यानी वो बोल नहीं पाती थी properly in front of him. He appeared to her as harsh. in front of him यहाँ पे आप को ये जहन में रखना है, in front of his father की बात करें. He appeared to her as harsh. वो उसको नजर आता था, जाहिर appear नजर, क्या उसको appear कैसा होता था? harsh, rude, बड़ा ही खौफनाक, rude, बहुत ही critical. He was like a gant for Kizai. वो कीज़ई के लिए कुछ गैंट से यानी देव से कम नहीं था his father. तो खुद ही आप समझते हो सकते हो कितना उसको थ्रेट था उसके अपने वालिद का. Mother would encourage her to go to the father in the drawing room when he came from the office and took off his boots like a good girl. Kizai would turn so nervous, but there was no way out. She couldn't disobey her mother, and she would take off her shoes. He would ask if she had been a good girl that day. Mother would encourage her to go. माँ ने उसको क्या किया? इनकरेज किया. किसको इनकरेज किया? कीज़ई को इनकरेज किया. क्या उसको क्या कहा? कि आप जाओ, यू कैन गो, आप जाओ टू द फादर, बाप के पास, इन द ड्राइंग रूम, हु वाज एट दैट टाइम इन द ड्राइंग रूम व्हेन ही केम फ्रॉम द ऑफिस. क्योंकि जब उसके वालिद आते थे वो ड्राइंग रूम में जाते थे. जब वो ऑफिस से आते थे वापस घर छुट्टी टाइम पे, जब रिटर्न पे आते थे तो ड्राइंग रूम में जाते. एंड उसकी माँ ने कहा आप जाओ और वहाँ पे आपको क्या करना है? टुक ऑफ हिज बूट्स, आप अपने फादर के बूट्स उठाओ, लाइक ए गुड गर्ल, जैसे अच्छे बच्चे काम करते हैं. ये अच्छे बच्चों की हैबिट है. इट इज़ अ गुड हैबिट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स और योर पेरेंट्स. कीज़ई वुड टर्न सो नर्वस, लेकिन कीज़ई के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं थी, वो बहुत ही नर्वस थी. बट देयर वॉज नो वे आउट, लेकिन इसके बगैर उसके पास कोई चारा
नहीं था। शी कुडंट डिसओबे हर मदर, वो अपने माँ की बात को ठुकरा भी नहीं सकती थी, इनकार भी नहीं करती थी, डिसओबे नहीं कर सकती थी। एंड शी वुड टेक ऑफ हर हिज शूज, उसने डिसाइड किया कि उसके आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे बूट्स लिखे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द सेम बूट्स आर शूज। एंड शी वुड टेक ऑफ हिज शूज और यू कैन से बूट्स। ही वुड आस्क हिम इफ शी हैड बीन ए गुड गर्ल दैट डे, जहाँ वो अपने वालिद की रेस्पेक्ट करेगी तो नतीजन क्या होगा, ही वुड आस्क हिम, वो उसको कहेगा, यानी उसका फादर कहेगा शी हैड बीन ए गुड गर्ल, कि उसकी एक अच्छी बेटी है। One day she was kept indoor with a cold. The grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift. One day, एक दिन क्या हुआ, she was kept indoor with a cold. जुकाम की वजह से, यानी उसको जुकाम हो गया था, कोल्ड था, किसको, कीज़ई को। और शी वॉज केप्ट इंडोर, उसको कहा गया था कि आप इंडोर रहना, यानी घर के अंदर। जैसे आज कहा जाता है ना आपको, ज़्यादा आप इंडोर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, तो सेम इज़ द केस विथ हर। तो इसको भी कहा गया कि आप इंडोर रहो घर के अंदर बिकॉज ऑफ कोल्ड। ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज, जो इसकी ग्रैंड मदर थी उसने कहा कि आपके जो वालिद का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है। एंड सजेस्टेड, और उसने उसको सजेस्ट किया, यानी नसीहत की, मशवरा दिया, सजेस्टेड है, मशवरा दिया, नसीहत की, किसको, कीज़ई को। शी शुड बेक ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, आप एक पिन कुशन बनाएं एज अ गिफ्ट ऑन द बर्थडे टू हर फादर। सो पिन कुशन बच्चों क्या होता है, ये कपड़े की तीन तरफ सिलाई जो हम करते हैं, तो ऊपर से उसका जब ओपन रहता है उसको हम कहते हैं पिन कुशन। 3 साइड स्टिचिंग, जिसको 3 साइड से स्टिच किया गया हो। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। कीज़ा स्टिचड 3 साइड्स ऑफ ए डबल cotton. Now she wanted to stuff it with something. She looked out for it here and there. Suddenly, in the mother's room, she found many sheets of fine paper, gathered them, tore them, and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. Unknowingly, she committed a grave mistake. These were the important papers as they contained her father's speech for the port authority. Dear students, अब कीज़ई ने क्या किया, उसने डिसाइड किया दैट शी विल मेक ए पिन क्यूशन, वो एक पिन क्यूशन बनाएगी। और उसके लिए उसने क्या किया, शी स्टिचड 3 साइड्स ऑफ ए डबल कॉटन। डबल मीन्स 2 साइड से, बीच में जैसे हमारे जेब होता है ना डबल साइड। अगर आप देखें कोई भी चीज़ हम कपड़े की अगर बनाएंगे तो जब हम उसको 3 साइड से, यानी 3 साइड से उसको अगर स्टिच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक पैकेट सा बन जाता है। तो इसी तरह ये भी इसने कीज़ई ने भी स्टिच किया 3 साइड से ऑफ ए डबल कॉटन। नाउ शी वांटेड टू स्टफ इट विथ समथिंग, अब वो चाहती थी कि इसके अंदर कुछ भर दे। स्टफ मीनस भरना, कोई चीज़ के अंदर भरना। शी लुकड आउट, उसने बाहर देखा, इट बाहर, हियर एंड दियर, उसने बाहर जब इधर इधर नज़र डाली तो सडनली इन द मदर्स रूम शी फाउंड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अचानक उसकी नज़र अपनी माँ के कमरे में पड़ी, किसके ऊपर, उसको वहाँ पे नज़र आया मैनी शीट्स, बहुत सारी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर की। गैदर्ड दम, इसने उनको क्या किया, गैदर्ड मीन्स जमा किया, एक जगह इकट्ठा किया। टोर देम एंड स्टफड हर केस, उसने उनको फाड़ दिया फिर। टोर मीन्स फाड़ना, काट देना। पीसेस उसकी बनाई, किसकी, वाइट, जो ये वहाँ पे फाइन पेपर शीट्स थी उसकी पीसेस उसने बनाई। और फिर क्या किया, एंड स्टफड हर केस, और उसने उसको पिन कुशन के अंदर, जो उसने कपड़े की जो स्टिच करके सिलाई करके वो पॉकेट से बनाया था, तो उसके अंदर उसने फिल कर दिया। क्योंकि एक ही साइड उसका ओपन था, तो ओपन वाले साइड से उसने इसके अंदर क्या डाले, फाइन पेपर शीट्स, बट टॉर्न फाइन पेपर शीट्स। बट क्या हुआ, अननोइंगली, अनजाने में, हाँ न जानते हुए, बेखबरी में क्या हुआ, शी कमिट ए
ग्रेट मिस्टेक, उसने एक बहुत बड़ी ग्रेव हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती उसने की। दीज वर द इम्पॉर्टेंट पेपर्स, जो पेपर इसने फाड़े थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। एज दे कंटेनेड हर फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि जो ये पेपर्स थे, पेपर्स के ऊपर क्या था, उसके जो वालिद थे, फादर की स्पीच थी लिखी हुई, जो उसको कहाँ पे करनी थी, जो उसने कहाँ के लिए रखी थी, डैट वाज अ पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ पे, पोर्ट अथॉरिटी। प्यारे बच्चों, अब आगे, मदर डिडंट यू सी पेपर्स ऑन अ टेबल। अब माँ ने पूछा किजई से, डियर किजई, हैवंट सीन यू पेपर्स ऑन द टेबल, क्या आपने पेपर्स टेबल के ऊपर नहीं देखे? किजई की रेस्पॉन्स क्या थी? किजई ने कहा, ओह यस, हाँ मैंने देखे। शी सेड, उसने कहा, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया अपनी सरप्राइज के लिए, डेट आई विल मेक माई पेरेंट, आई विल मेक माई फादर सरप्राइज ऑन द बर्थडे। मदर कहती है, व्हाट स्क्रीमड, ओहो हो। मदर बहुत ही क्या होगी, ओह उसको बहुत गुस्सा आ गया, शी स्क्रीमड, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया इसकी इस गलती के ऊपर, उसको बहुत ही दुख हुआ। शी वॉज ड्रैगड डाउन टू हिज फादर एंड मदर एक्सप्लेन द मैटर। शी वॉज ड्रैगड मतलब उसको घसीट के लिया, ड्रैग घसीट के लेना, डाउन टू द फादर, कहाँ लिया, बाप के पास। किसको, किजई को। शी यहाँ पे किजई है, ये गर्ल जो है ये। एंड मदर एक्सप्लेन द मैटर, और माँ ने अपने हस्बैंड यानी इसके फादर को कहा, उसने इसको सारी वजह बताई, क्या हुआ, क्या बात हुई है। फादर, the father came into room and with a ruler and beat her on her little pink palamus, and she cried and sobbed. What did God make fathers for? अब जब माँ ने घसीट के ड्रैग करके किजई को फादर के सामने रहा, तो फादर ने क्या किया, बाप ने जब सुना कि उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं विच वर टॉर्न बाय किजई, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो फादर ने क्या किया, उस फादर डिसाइडेड ही कैम इनटू द, वो कमरे में आया विथ अ रूलर, उसने अपने एक हाथ में एक रूलर लाया, एंड बीट हर ऑन हर लिटिल पिंक पलमस, और उसने उसको मारा, बीट मीन्स मारना, कहाँ किसको मारा, हर मीन्स किसी को, ऑन हर लिटिल पिंक पलमस, जो उसके गुलाबी रंग के पिंक कलर के जो उसके हाथ यानी सॉफ्ट हाथ, मासूम हाथ थे, उन हाथों के ऊपर मारा। एंड शी क्राइड एंड सोबर्ड, वो चिल्लाती थी, शी क्राइड वो चिल्ला रही थी, एंड सोबर्ड और सिसकियाँ भी ले रही थी, आस्ता आस्ता रो भी रही थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर, उसने कहा ये गॉड इन फादर्स को क्यों बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, I think you have got it. So my dear guys, wait for next video. I have almost completed this short story, and it is the end of today's video. With this I will pause for next video. I have almost completed this story, and I hope you will read it from your textbook. By reading, dear students, you will understand it more easily. Thank you for watching. Assalamu alaikum.